ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬਟ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਦ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ। ਅਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਪੋਲ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਿਰਰ, ਫੋਕਸ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲॉज ऑफ रिफ्लैक्शन ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਰੇ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲॉज ऑफ रिफ्लैक्शन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਿਰਰ ਨੋਰਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਏਗੀ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਂਡਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੀ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੀ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸੀ 'ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਿਰ ਐਫ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਐਫ 'ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ 6 ਕੇਸਿਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਫਸਟ ਕੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੋਕਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਮੇਜ ਐਟ ਫੋਕਸ। ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਮੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਈਲੀ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੇਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਕੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਰੀਅਲ, ਇਨਵਰਟਡ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼। ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀ 'ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਜੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਏ ਬੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਸੀ 'ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਹੈ,
ਇਨਵਰਟਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੇਮ ਇਨ ਸਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ऑब्जेक्ट प्लेस किया जी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, फिर ਉਹੀ मैथड यूज़ करते हैं। तो एक रे जाएगी जी इस दे पैरेलल प्रिंसीपल एक्सिस से, वो फोकस चों पास करेगी। दूजी रे असी डायरैक्ट सी दे अलॉन्ग मिरर के उपर स्ट्राइक कर रहे हैं, असी इस पासे वाल स्ट्राइक करवाई रे तो उस पासे वाल वापस आ गई। तो ये दोनों रे जो रिफ्लैक्टेड है जिस जगह से जाके मीट करनी है, ए पॉइंट की इमेज फॉर्म होएगी तो ए डैश बी डैश इमेज जो है फॉर्म हो जाएगी। तो तुहानूं इमेज दिखाई दे रही है किस तरह की रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। तो जो इमेज है वो रियल है, इनवर्टेड है, तो वेरी क्लीयर फ्रॉम द डायग्राम इज़ लार्ज इन साइज़। ठीक है जी। तो नैक्सट केस है जी, देखो फिफ्थ केस, हुण असीं ऑब्जेक्ट नूं प्लेस कर रहे हैं एट फोकस। तो जो फोकस से प्लेस किया तो एक रे गई जी पैरेलल प्रिंसीपल एक्सिस से, वो फोकस चों पास कर रही है। ठीक है। दूजी रे डायरैक्ट सी दे अलॉन्ग मिरर के उपर जाके स्ट्राइक कर रही है तो उस पास से वापस आ जाएगी। आफ्टर रिफ्लैक्शन ये दोनों रेज पैरेलल हो रही हैं तो इमेज कित्थे बन रही है, इन्फिनिटी ते। ठीक है। तो इसनूं असीं कहांगे जी रियल, इनवर्टेड एंड लार्ज इन साइज़। ये देखो इनवर्टेड इमेज इस तरीके नाल फॉर्म होएगी, कित्थे होएगी, इन्फिनिटी ते जाके मीट करनी है, क्योंकि पैरेलल है तो असीं कह दिंदे जी इन्फिनिटी ते जा रही हैं। ठीक है। जिवें इन्फिनिटी तो पैरेलल आ रही सी उस तरह इन्फिनिटी ते जा रही हैं। हुण एक केस देखो जी जिहड़ा असीं डिस्कस करन जा रहे हैं कि एक स्पैशल केस है जिंदे विच असीं ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल दे। असीं ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो ये रे गई जी फस्ट पैरेलल ऑब्जेक्ट तो, जिहड़ी कि मिरर के उपर जाके स्ट्राइक की तो इत्थों ये रिफ्लैक्ट होगी जी इस पासे वाल। तो ये फस्ट रे है। सैकेंड रे सी दे अलॉन्ग इस पासे वाल जा रही है, रे इधर स्ट्राइक की जी, इत्थे जाके ये उस पाथ में रीट्रेस करके तो ये दोनों रेज डाइवर्ज कर रही हैं। देखो इस साइड से मीट नहीं करनी है तो सानू रेज में एक्सट्रापोलेट करना पएगा। अभी एक्सट्रापोलेट करांगे बैक साइड से डॉटेड एक्सट्रापोलेट करनी होंगी एक्चुअल। तो सानू लगेगा कि ये रेज जिहड़ियां वो कित्थों आ रही हैं, वो इस पॉइंट तो आ रही हैं ए डैश तो। ठीक है। तो ए डैश बी डैश इस दी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो जो असीं एक्सट्रापोलेट करिए तो जो साडी इमेज है वो की है, वर्चुअल है। ठीक है। इस केस दे विच इरैक्ट फॉर्म हो रही है, वर्चुअल हमेशा इरैक्ट होएगी तो रियल हमेशा इनवर्टेड होएगी। ठीक है। तो एंड लार्ज इन साइज़, मैगनीफाइड इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। तो इस केस का बड़ा बेनिफिट है सानू कि लार्ज इमेज फॉर्म होंदी है, इरैक्ट इमेज फॉर्म होंदी है। ठीक है। तो इरैक्ट इमेज का एडवांटेज है। तो एक ही केस है इरैक्ट इमेज का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वैन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। हुण असीं गल करते हैं जी इमेज फॉर्मेशन इन कन्वैक्स मिरर की। एक कन्वैक्स मिरर है, ये फोकस है जी उसका कन्वैक्स मिरर का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। ये स्फीयर का पार्ट है तो इस साइड पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होएगा, ये ध्यान रखना है। इस साइड पर नहीं बना देना, सारा काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। फस्ट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसीपल एक्सिस से, तो ये रे इस साइड पर बेंड कर जाएगी। दूजी रे असी अलॉन्ग द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक करनी होंगी है, वो इत्थे जाके स्ट्राइक करेगी तो इत्थों वापस आ जाएगी। हुण ये दो रिफ्लैक्टेड रेज है, नंबर 1 तो नंबर 2, ये दोनों देखो डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्जिंग मिरर है तो इन्हें दोनों डाइवर्ज कर देनी है, तो इन्होंने असीं एक्सट्रापोलेट करांगे। तो जिस जगह पर जाके इंटरसैक्ट कर देंगे इत्थे, तो सानूं ऐ लगेगा जी ए पॉइंट की इमेज इत्थे फॉर्म हो रही है। सिमिलरली बाकी पॉइंट्स दी इमेज फॉर्म हो जाएगियां तो बी डैश आ जाएगा, तो ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस केस दे विच इमेज जो है हमेशा वर्चुअल होएगी, इरैक्ट होएगी तो स्मॉल इन साइज़ होएगी। तुसीं किते भी प्रिंसीपल एक्सिस से प्लेस कर लो। हाँ, एक केस होर हो सकता है जे असीं ऑब्जेक्ट नूं इन्फिनिटी ते प्लेस करते हैं तो पैरेलल रेज आउणगियां, फिर वो फोकस से इमेज फॉर्म करनगियां। ये असीं पहलां ही डायग्राम बना चुके हैं इसकी, तुहानूं याद होएगा जो असीं फोकस नूं डिफाइन किया सी, तो बिल्कुल सेम केस होएगा जी। दो केस हो सकते हैं जी मैक्सीमम। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नूं जे असीं इन्फिनिटी ते प्लेस करांगे तो इमेज फॉर्म होएगी फोकस से, वो भी वर्चुअल, इरैक्ट तो स्मॉल इन साइज़ होएगी, उसनूं असीं डिमिनिश्ड कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल पॉइंट ही होएगा वो। तो दूजा केस ये वाला जी जिंदे विच असीं कह सकते हैं कि किते भी तुसीं प्लेस कर लो तो उसकी इमेज जो है वो दूसरी साइड पर फॉर्म होनी है जी। ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस तो वर्चुअल होएगी, इरैक्ट होएगी तो स्मॉल इन साइज़ होएगी। क्लीयर। तो नैक्सट टॉपिक असीं डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला की है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किस जगह पर असीं ऑब्जेक्ट प्लेस किया फ्रॉम द मिरर, इमेज डिस्टेंस
किस जगह पर इमेज फॉर्म हो रही है मिरर तो असी पोल तो डिस्टेंस मेजर करते होंगे ना सारे, याद है, ठीक है। तो एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ U ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस ਨੂੰ V ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं, तो फोकल लेंथ ਨੂੰ F ਦੇ ਨਾਲ, तो ये U V ਤੇ F ਦੇ ਵਿੱਚ रिलेशन है। तो इसनों ਅਸੀਂ कॉनकेव मिरर ਲਈ भी कर सकते हैं तो कॉन्वैक्स मिरर ਲਈ भी कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ दो केस बनणगे, रीयल ਤੇ वर्चुअल ਦੇ, तो कॉन्वैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 by 1 डिस्कस करते हैं। फस्ट ਅਸੀਂ करते हैं जी कॉनकेव मिरर ਤੇ ਰੀਅਲ इमेज। तो साढ़े को बहुत सारे केस सीगे जी रीयल इमेज फॉर्म होने दे, तो असं उहदे कोई एक केस अज्यूम कर लें, ठीक है। तो उहदे लई मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखो असीं ऑब्जेक्ट नूं प्लेस करते हैं बिफोर सी, ठीक है, तो उसकी रीयल इमेज फॉर्म करते हैं। तो डायग्राम हुण तुसीं अपने आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो जी कॉनकेव मिरर अज्यूम कर रहे हैं, प्रिंसीपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट नूं असीं प्लेस करते हैं बिफोर सी, ठीक है। तो एक रे पैरल जाएगी जी, वो फोकस चो पास करेगी, दूजी डायरैक्ट सी के थ्रू पास करेगी तो वापस आ जाएगी। तो जिस जगह ते दोनों रेज मीट करनगियां इस जगह ते इमेज फॉर्म हो जाएगी जी। तो इमेज फॉर्म हो रही है, इसनों असीं ए बी लिखते होंगे हमेशा, इसनों ए डैश बी डैश नाम दे सकते हैं, ठीक है। डेरीवेशन ਲਈ फॉर्मूले ਨੂੰ ड्राइव करने ਲਈ ਅਸੀਂ एक होर रे अज्यूम करते हैं जो कि पी के उपर स्ट्राइक करेगी तो नैचुरली इस पॉइंट के विचों पास करेगी। देखो जी ये थर्ड रे असीं अज्यूम कर रहे हैं जो कि पी के उपर स्ट्राइक कर रही है, तो जिन्ने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है उन्ने एंगल पर रिफ्लैक्ट हो रही है। सारियां रेज ही वैसे यही चीज़ है, तो वो भी इस पॉइंट के विचों पास करेगी तो ए डैश बी डैश उसकी इमेज फॉर्म होएगी, ठीक है जी। तो डेरीवेशन लिए असीं इत्थे दो ट्रायंगल्स अज्यूम कर रहे हैं, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स तुहानूं दिखाई दे रही हैं जी, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी है सिमिलर ट्रायंगल्स दे तीनों कोण जो एंगल है वो सेम होंदे हैं। तो इन्हां दीयां जो सिमिलर साइड्स है, कोरसपोंडिंग साइड्स है, वो सेम रेशो दे विच हुंदियां। जे असीं परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर कर दिए, बेस ओवर बेस कर दिए, ठीक है, इस तरह हाईपोटन्यूस ओवर हाईपोटन्यूस कर दिए तो उन्होंने रेशो सेम होएगी। तो इन्होंने ट्रायंगल्स लिए असीं लिख सकते हैं जिस तरह से करते हैं जी ए डैश बी डैश ओवर ए बी परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर देखो इज़ इक्वल टू बेस ओवर बेस बी डैश सी ओवर बी सी, गिव इट नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली टेक टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी पी and triangle a dash b dash p are also similar। जे ए सिमिलर है तो इन्हां दी कोरसपोंडिंग साइड्स भी सेम रेशो होणगियां, दिखाई दे रही हैं जी ए बी पी ए वाली ट्रायंगल, तो ए डैश बी डैश पी ए ट्रायंगल। तो असीं इन्हां दियां जो लै रहे हैं जी वो लै रहे हैं सेम पहलां दा ए डैश बी डैश ओवर ए बी, ठीक है। दूसरी साइड असीं लै रहे हैं जी ये बेस वाली, इसनूं असीं बी पी नहीं लिखना, देखो इसनूं असीं पी बी तो पी बी डैश लिखांगे तो ये आएगा पी बी डैश ओवर पी बी। ये लिखने का कारण की है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, जो साइन कन्वेंशन सीगियां साडियां कि सारे डिस्टेंस असीं पोल तो मेजर करने हैं, तो असीं पी बी लिख रहे हैं, गिव इट नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 की होएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट पी बी डैश ओवर पी बी, राइट हैंड साइड्स में असीं इक्वेट कर लेने हैं, इज़ इक्वल टू बी डैश सी ओवर बी सी, ठीक है जी। हुण जो वैल्यू साडे कोल हैगियां सब तो पहलां तां जी पी बी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसनूं असीं यू नाल लिखते हुंदे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। जो इमेज का डिस्टेंस है ए डैश बी डैश इमेज है, तो इमेज का डिस्टेंस है जी ये वी है, फ्रॉम पोल इट्स वी। तो जो फोकस का डिस्टेंस है इट्स एफ, ठीक है। ये तीनों डिस्टेंस तो साइन कन्वेंशनस लगावांगे पी एफ, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन के इंसीडेंट कर रही है, तो ये सारे डिस्टेंस लाइट के इंसीडेंस के अगेंस्ट मेजर हो रहे हैं। पी बी तो जो पी बी है ये होएगा -u, जो पी बी डैश है ये होएगा -v,
तो जो पी एफ है ये होएगा जी माइनस एफ। साइन कन्वेंशनस लगा के ये सारे डिस्टेंस लाइट के इंसीडेंस के अगेंस्ट मेजर हो रहे हैं। देखो पी बी डैश तो पी बी साढ़े कोल इहदे विच डायरैक्ट पुट हो जाएंगे, बट बी डैश सी तो बी सी नहीं है। तो असीं बी डैश सी तो बी सी नूं की करांगे जी, देखो तो ये बन जाएगा जी पी बी डैश ओवर पी बी इज़ इक्वल टू बी डैश सी। हुण आ बी डैश सी वैल्यू साढ़े कोल नहीं है, तो इसनूं असीं लिखांगे जी पी सी माइनस पी बी डैश। पी सी दे विचों पी बी डैश सबट्रैक्ट कर देंगे तो बी डैश सी आ जाएगा, तो बनेगा जी पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, इस तरह ही पी बी बी सी फाइंड करना है, तो बी सी की होएगा, बी सी होएगा जी पी बी माइनस पी सी। हुण पी सी वैल्यू भी सानूं चाहिए है, तो पी सी की है जी, पी सी इज़ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी तो लेके सी द डिस्टेंस, ये भी माइनस आर होएगा। साइन कन्वेंशनस लगा के तो ये वैल्यूज असीं पुट कर दिंदे हैं जी। देखो तो पी बी डैश की वैल्यू, पी बी डैश की वैल्यू है जी माइनस वी ओवर पी बी की वैल्यू माइनस यू, पी सी इज़ माइनस आर माइनस पी बी डैश इज़ माइनस वी ओवर पी बी इज़ माइनस यू एंड पी सी इज़ माइनस आर। ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो बन जाएगा वी ओवर यू इज़ इक्वल टू माइनस आर प्लस वी माइनस यू प्लस आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके की होंदा तो बनेगा जी माइनस यू वी प्लस वी आर इज़ इक्वल टू माइनस यू आर तो प्लस यू वी। ठीक है, यू वी वाली टर्म्स एक साइड पर कर लो, आ यू वी वाली टर्म है इन्हें उधर ले जाओ, आ आर वाली टर्म्स एक साइड पर कर लो, तो ये बन जाएगा जी आ टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी। सब तो पहले असीं यही लिख रहे हैं, इधर ले आके यू आर, फिर ये लिख रहे हैं जी प्लस वी आर। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू यू वी, ये भी उधर चली जाएगी, ये बन जाएगी जी प्लस यू वी, तो बन जाएगा जी यू आर प्लस वी आर इज़ इक्वल टू 2 यू वी। ठीक है, हुण इसनूं डिवाइड कर दिंदे हैं जी बोथ साइड्स ते यू वी ते आर दी प्रोडक्ट दे नाल। जो इस टर्म में डिवाइड करांगे तो बच जाएगा जी 1 बाय वी, इनू डिवाइड करांगे तो बन जाएगा जी 1 बाय यू, इसनू डिवाइड करांगे तो बनेगा जी यू भी कैंसिल हो जाएगा 2 ओवर आर। ठीक है, जो असीं आर की वैल्यू पुट करांगे सानू पता है जी वी नो आर इज़ इक्वल टू 2f। ये रिलेशन असीं लास्ट टॉपिक दे विच कर चुके हैं, तो इसनू असीं लिख सकते हैं जी 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज़ इक्वल टू 2 ओवर 2f। 2 नाल 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा जी 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज़ इक्वल टू 1 ओवर f। तो दिस इज़ द मिरर फॉर्मूला। ठीक है जी, ये असीं ड्राइव किया फॉर कॉनकेव मिरर रियल इमेज। इस तरह ही असीं जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज लिए करांगे तो तुसीं सेम ट्रायंगल्स लैनी है जी, सेम वे दे नाल सिमिलैरिटी कॉन्सैप्ट यूज़ करना है, तो उन्होंने बस वैल्यूज साइन कन्वेंशनस लगा के पुट करांगे तो फॉर्मूला सेम बनेगा, तो सेम फॉर्मूला कॉन्वैक्स दे विच बनेगा। ठीक है, तो कॉनकेव दी मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करूँगा जी, तुसीं डेरिवेशन अपने आप करनी है, तुसीं कंप्लीट कर लिया जी। तो देखो जी हुण असीं ऑब्जेक्ट नूं प्लेस कर रहे हैं बिटवीन एफ एंड पी, तो इसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होएगी, तो एक रे पैरेलल स्ट्राइक करेगी, वो फोकस चो पास करेगी। ठीक है, दूसरी रे डायरेक्ट स्ट्राइक करेगी जी नॉर्मल, वो सीधे लॉन्ग वापस आएगी। ठीक है, डेरिवेशन लिए की करते हैं जी, एक तीसरी रे नूं पी ते स्ट्राइक करते हैं तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, तो वो भी ऐ लगेगा जिवें ए डैश पॉइंट तो आ रही है। ये देखो ये तीसरी रे इत्थे स्ट्राइक करेगी पोल ते, तो इस साइड ते बेंड हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। तो इसनूं भी असीं एक्सट्रापोलेट करांगे। ठीक है जी, तो हुण तुसीं फिर उत्थों ही स्टार्ट करोगे जी, टेक 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी ओवर बी सी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर तुसीं ट्रायंगल्स लाओगे जी ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर ऑल्सो सिमिलर, उन्होंने भी ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश ओवर
PB, ठीक है। फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ PB, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ, P ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ PB ਇਜ਼ -U, PB ਡੈਸ਼ is +V, PF is -F and PC is -R। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 1/V + 1/U = 1/F। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਲ, ਫੋਕਸ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਰੇਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਰੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਲੋਂਗ C, ਥਰਡ ਐਟ P। देखो जी फर्स्ट रे जो पैरेलल जा रही है ये बेंड हो जाएगी जी, देखो जी इस साइड से रिफ्लैक्ट हो जाएगी है। सैकेंड अलोंग C जाएगी तो इसे पासे वापस आ जाएगी, अलोंग C जा रही है, इस पासे वापस आ जाएगी। इन्होंने एक्सट्रापोलेट करांगे तो इमेज फॉर्म होएगी। थर्ड रे असीं P ते स्ट्राइक करवावांगे तो वो रिफ्लैक्ट, तो देखो जी इस साइड से जाएगी, जो असीं इसनूं एक्सट्रापोलेट करांगे तो ऐ लगेगा उस पॉइंट तो आ रही है, तो इस जगह तो इमेज फॉर्म हो जाएगी जी, A डैश B डैश। ऑब्जेक्ट इज AB, ठीक है। ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस U, इमेज द डिस्टेंस V, F द डिस्टेंस स्मॉल f, फोकल लेंथ, C द डिस्टेंस R। क्लीयर। तो इन जो PB डिस्टेंस है PB वो -U होएगा, PB डैश +V होएगा साइन कन्वेंशनस लगा के, PF जो है +F होएगा, तो PC वैसे PF की तो जरूरत ही नहीं पैंदी सानू, PC +R होएगा, ठीक है जी। ये वैल्यूज असीं पुट करांगे। सेम ट्रायंगल्स पहला ABC ए वाली ट्रायंगल तो A डैश B डैश C, ठीक है। फिर A डैश B डैश P तो ABP ट्रायंगल लवांगे, सेम फार्मूला जी 1/V + 1/U = 1/F। तो आई होप कि तुसीं ड्राइव कर लोगे। तो नैक्सट टाइम असीं इस दी मैगनीफिकेशन लई गल करांगे कि इमेज का साइज़ की बन रहा, उसनूं असीं मैगनीफिकेशन दे नाल एक्सप्लेन करते हैं, तो मिरर के यूजेस डिस्कस करांगे, कन्वैक्स ते कनकेव दे, ते कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करांगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।